اس بدبخت نے جو 11 ارب روپے کی پراپرٹیز بنائی ہیں وہ آج کے ویلاگ میں ہم منظر عام پر لانے والے ہیں. لیکن ان پراپرٹیز کو منظر عام پر لانے کے ہمارے دعوے کے بعد اس کے چیلوں کی جانب سے پہلے سے ہی ماحول بنانا شروع کر دیا گیا تھا کہ جناب یہ ساری جائیداد ان کی وراثتی جائیداد ہے. تو جناب پورا پاکستان جانتا ہے کہ حق خطیب صاحب کے والد محترم مصنف علی ایک درویش منش آدمی تھے. مال و دولت سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا دور دور تک. تو یہ وراثتی جائیداد نہیں ہے اور یہ بھی یہ دستاویزات ثابت کریں گی اس لیے کہ یہ دستاویزات پچھلے 3-4 برس کی ہیں جن میں کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ٹرانسفر ہوتی رہی اس جعلی عامل حق خطیب کے نام پر. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز تھوڑا سا وقت نکال کر آج کا یہ ویلاگ ضرور دیکھیے گا, اس لیے کہ آج کے اس ویلاگ میں ہم جعلی پیر حق خطیب کے نام پر موجود 11 ارب روپے کی جائیدادوں کی مصدقہ دستاویزات منظر عام پر لا رہے ہیں. 1100 کروڑ کی جائیدادیں. یہ بھی واویلا کیا گیا اس کے چیلوں کی جانب سے کہ حق خطیب صاحب کے ایک بھائی کنسلٹنٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں برطانیہ میں, انہوں نے یہ سارے پیسے بھیجے. تو ایک تو اس شخص کے بھائی کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری کے نام پر, لوگوں سے لوٹ مار کر رہا ہے ڈاکٹری علاج کے نام پر. بھائی سارے مریضوں کو اپنے بھائی حق خطیب کے پاس بھجوائے تاکہ ان کو شفا نصیب ہو اگر اس کا ایمان اور عقیدہ ہے اپنے بھائی کے اوپر. اور آپ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ برطانیہ میں موجود ایک ڈاکٹر پچھلے 3-4 سال میں 11 ارب روپے بھجوائے اپنے بھائی کو پراپرٹیز لینے کے لیے اور وہ پراپرٹیز بھائی اپنے نام پر لے لے. ان میں سے کوئی دستاویز کوئی جائیداد ایسی نہیں ہے جو حق خطیب کے اپنے نام پر نہیں ہے. مزدوروں سے, محنت کشوں سے, مریضوں سے, معذوروں سے لوٹ مار کرنے کے بعد جو اس نے عام لوگوں کو, محنت کشوں کو, مزدوروں کو لوٹنے کے بع بنائی ہے, مریضوں کا خون چوسنے کے بعد بنائی ہے, معذوروں کی ہڈیاں نوچنے کے بعد بنائی ہے. آپ تصور کیجئے کہ اس ملک کا ایک عام آدمی, ایک مزدور, ایک محنت کش جس کے گھر میں پہلے ہی بہت تکلیف ہے, جو ایک ایک پائی نہایت محنت سے کماتا ہے, جس کے گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہے, کسی کو گردوں کا عارضہ لاحق ہے, کوئی جگر کے عارضے میں مبتلا ہے, کوئی معذور ہے, یہ شخص محض اپنی لوٹ مار کے لیے 8 سے 9 مرتبہ دم کروانے کے لیے بلاتا ہے ان تمام مریضوں کو, ان بے سہاروں کو, ان لاچاروں کو. اور جس ٹرانسپورٹ پر یہ مجبور لوگ اس کے اڈے پر جاتے ہیں وہ ٹرانسپورٹ بھی اس کے اپنے ہرکاروں کی ہوتی ہے. اس میں سے بھی اس بدبخت کو کمیشن جاتا ہے اور ہر بار جانے پر اس کے کارندے, اس کے ہرکارے, اس کے کرائے کے ٹٹو ان لوگوں سے پیسے طلب کرتے ہیں لنگر کے نام پر, نذرانوں کے نام پر. اس کے بے تحاشا ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ٹائم کا کرایہ جو 10 سے 15 ہزار روپے لگتا تھا, ادھر ان کا قافلہ جاتا ہے, بسوں کی کارڈ ہے یہ, پھر مکی صاحب ادھر گاڑیاں جاتی ہیں ان کی. بہت سارے ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ بھی چکے. تو ایک غریب آدمی کو لوٹنے کے بعد تو اگر وہ 11 ارب روپے آئے ہیں بالفرض محال تو اس کی دستاویزات حق خطیب صاحب قوم کے سامنے اور اداروں کے سامنے پیش کریں, کیونکہ ہم انشاءاللہ العزیز یہ تمام تر دستاویزات, یہ ثبوت لے کر نیب کے پاس بھی جا رہے ہیں, ایف بی آر کے پاس بھی جا رہے ہیں, انکم ٹیکس کے پاس بھی جا رہے ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کے سامنے بھی جا رہے ہیں. میں آغاز کرتا ہوں پہلے ڈاکیومنٹ سے, لیکن یاد رہے کہ یہ دستاویزات محض پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی ہے, یعنی صرف وہ جائیدادیں ہمارے پاس ان کے دستاویزات موجود ہیں جو پنجاب میں ہیں حق خطیب صاحب کے نام پر. بحریہ ٹاؤن میں, ڈی ایچ ایز میں, اسلام آباد میں, کے پی کے میں, سندھ میں, بلوچستان میں اور پاکستان سے باہر جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ تو شمار ہی میں نہیں آ سکتی. ان کے پاس جس قدر زیورات ہیں, لوگ انہیں سونے کے تاج پہناتے ہیں, انہیں سونے اور ہیرے کی انگوٹھیاں تحفتاً دیتے ہیں, ان کے پاس جو ارب ہار روپے کی لگژری گاڑیاں ہیں, ان کے محلات نما مکانات, کوٹھیاں, وہ اس کے علاوہ ہیں. یہ محض ان کے نام پر موجود پنجاب کی زمین کے دستاویزات ہیں. اندازہ کیجئے غریب مریضوں سے لوٹ مار کر کے مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے, ختم نبوت کی آڑ لیتے ہوئے اس بدبخت نے اپنی ذاتی جائیدادیں اربوں روپے کی بنا لی ہیں, جن میں سے 11 ارب کے ثبوت اس ویلاگ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. پہلا ثبوت آپ کی اسکرین پر, پہلی دستاویز پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی, یہ رجسٹری نمبر 1146 وہی نمبر 1 جلد نمبر 306 سرائے عالمگیر میں 3,77,55,371 روپے کی یہ جائیداد ٹرانسفر ہوئی 5/4/2021 کو. راجہ راشد زمان کی جانب سے منتقل کی گئی یہ زمین حق خطیب حسین ولد مصنف علی کو, جن کا پتہ اور شناختی کارڈ نمبر آگے موجود ہے. 3,77,00,000 یعنی 3.25 کروڑ روپے کی 5 کنال اور 3 مرلہ. اور آگے چل کر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ان دستاویزات میں بھی اصل قیمت چھپا کر کتنی بدبیانتی اور کتنا جھوٹ بولا ہے خود کو اللہ کے ولی کہنے والے اس فراڈ, دغاباز اور جعل ساز نے. یہ ایک دستاویز آپ کی اسکرین پر, لیکن یاد رکھیے پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو دستاویزات میں موجود قیمت ہوتی ہے وہ ڈی سی ریٹ یا ڈی سی ویلیو ہے, جس سے 5 گنا یا 10 گنا زائد اصل قیمت ہوتی ہے کسی بھی پراپرٹی کی. یعنی اگر یہ 4.25 کروڑ روپے ہے تو تقریباً اگر 5 گنا اضافی لگایا جائے تو 18 کروڑ روپے, اور 10 گنا اضافی لگایا جائے تو تقریباً 35 سے 40 کروڑ روپے کی یہ ایک پراپرٹی ہے. 66 پراپرٹیز کے ڈاکومنٹس میرے سامنے اس وقت میز پر موجود ہیں. دوسری دستاویز آپ کی اسکرین پر, یہ راجہ راشد صاحب کی جانب سے ہی ایک پراپرٹی ٹرانسفر کی گئی, سیم ڈیٹ 5/4/2021, رجسٹری نمبر 1145 وہی نمبر 1 جلد نمبر 306, 3,66,55,700 روپے اس کی قیمت ہے اور کل رقبہ ہے
5 कनाल का। मैं पूरे पाकिस्तान के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ हर इदारे के सामने दस्तावेजात पेश करेंगे और किसी दस्तावेज में कोई झोल हो मैं सहाफत छोड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी स्क्रीन पर तीसरी दस्तावेज मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन तहसील टेक्सला में इन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। रजिस्ट्री नंबर 9910 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 238 1,37,80,000 रुपए यानी तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए इस प्रॉपर्टी की असल कीमत। अगर 5 गुना और अगर 10 गुना तो फिर 10 से 12 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है जिसका कुल रकबा है 13 कनाल। तहसील रावलपिंडी में मोहम्मद फिरदौस वल्द मोहम्मद अकरम ने 12/1/2023 को एक जमीन फरोख्त की हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को, जिनका शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है और ये बिल इवज 1 करोड़ 5 लाख रुपए 3 कनाल और 10 मरला यानी ये भी तकरीबन 5 करोड़ या 10 करोड़ अगर इसकी 5 गुना या 10 गुना असल कीमत को कंसीडर किया जाए। तहसील कोटली सतिया फैयाज अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक रजिस्ट्री नंबर 70 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 1 करोड़ रुपए मौरखा 5/9/2022 को जमीन फरोख्त की गई हक खतीब हुसैन बादशाह वल्द सूबेदार मुसंजफ अली 17 मरले। तहसील फालिया जावेद इकबाल वल्द खिजर हयात की जानिब से 78,23,000 रुपए में 1/3/2022 को जमीन ट्रांसफर की गई फरोख्त की गई हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को 16 कनाल। वसीलत बीबी दुख्तर इब्राहिम तहसील कोटली सतिया रजिस्ट्री नंबर 23 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 50 लाख रुपए 1/4/2021 को 2 कनाल 3 मरला 46 फुट। यहां भी रियासत के साथ फ्रॉड करके एक राउंड फिगर देके असल कीमत भी छुपाई गई है और आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि रकबा बहुत ज्यादा है लेकिन कीमत बहुत नॉमिनल है जिसकी असल कीमत कई गुना ज्यादा है इन दस्तावेजात से। आफ्ताब अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक तहसील कोटली सतिया रजिस्ट्री नंबर 74 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 50 लाख रुपए 27/12/2021 को ट्रांसफर हुई हक खतीब वल्द सूबेदार मुसंजफ अली के नाम पर 1 कनाल 11 मरले 264 फुट। तहसील कोटली सतिया ही में फैयाज अहमद वल्द मोहम्मद सिद्दीक हक खतीब हुसैन के नाम पर ट्रांसफर करते हैं जमीन। रजिस्ट्री नंबर है 74/1 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 50 लाख रुपए 1 कनाल 2 मरला 28 फुट। ये बदबख्त खुद को दरवेश कहता है, ये कहता है मैं फकीर हूं, मैं अल्लाह का वली हूं, मैं कलंदरे दौरा उजरा देखते जाइए इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी गाड़ियां, इसके जेवरात, इसके महल्लात, पाकिस्तान के बाहर इसकी प्रॉपर्टीज और पंजाब के अलावा इसकी प्रॉपर्टीज इसके अलावा है वो भी बहुत जल्द मंजर आम पर आएंगी। तहसील शेखुपुरा गुलशेर अली वल्द मोहम्मद बशीर ट्रांसफर करते हैं 11 कनाल हक खतीब हुसैन के नाम पर। रजिस्ट्री नंबर है 1550 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 3782 बिल इवज 50 लाख रुपए। आप देखते रहिए 50 लाख का एक राउंड फिगर है जो कि फ्रॉड के लिए इस रियासत के साथ इस्तेमाल किया गया है। कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, मजहब को धंधा बना लिया इस शख्स ने, खत्म नबूवत के नाम पर यह शख्स कारोबार चमका रहा है, मरीजों के साथ इस्तेहसाल कर रहा है, मजबूर लोगों का फायदा उठा रहा है। माजूर अफराद जो सर्दी में गर्मी में इस आस पर इस उम्मीद पर कि इस बदबख्त के पास कोई इल्म है वहां लाइनों में लगे होते हैं, वहां जाकर उनसे वो लूटमार की जाती है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इसकी तस्वीरें बेची जाती हैं, इसकी तस्वीरों वाले कप फरोख्त किए जाते हैं, तावीज़ बेचे जाते हैं, लंगर के नाम पर पैसे उठे जाते हैं, जिस ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं उसका कमीशन तक आता है। ये बदबख्त इंसान लोग कहते हैं कि मैं हल्के अल्फाज का इस्तेमाल करूं, मुझे पाकिस्तान के आवाम बताएं कि एक फ्रॉड को मैं फ्रॉड न कहूं तो क्या कहूं, एक जालसाज को मैं जालसाज न कहूं तो क्या कहूं, एक खबासत से भरे हुए इंसान को मैं खबीस ना कहूं तो इसके अलावा क्या कहूं जो फकर के नाम पर, जो दरवेशी के नाम पर, जो मलंग और अल्लाह का वली होने के नाम पर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाकर बैठा है। और जब आप उससे कोई भी सवाल करते हैं कि आप आयत सुना दीजिए, आपकी करामात का भांडा फोड़ दिया, हमने साबित किया कि कर्तव्य है, तो ये कहता है कि मुझ पर इसलिए अटैक हो रहा है कि मैं खत्म नबूवत का नाम लेता हूं। पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान के गजूर मुसलमान, पाकिस्तान के मशाइख अगर इस फितने का रास्ता नहीं रोकेंगे तो दुनिया भर में जग हसाई होगी आपके अकीदे की भी, आपके नजरिए की भी और खत्म नबूवत के मकसद की भी कि इस तरह के बदबख्त, इस तरह के रजील और इस तरह के खबीस इंसान खत्म नबूवत के कौज का बदकिस्मती से चेहरा है। हम सबको इस फितने का रास्ता रोकना होगा। देखते जाइए अगली जायदाद की दस्तावेज कल्बे हुसैन वल्द मोहम्मद इनायत तहसील फालिया रजिस्ट्री 506 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 897 अगेन बिल इवज 50 लाख रुपए यानी राउंड फिगर 12 कनाल हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली के नाम पर ट्रांसफर हुई और इसमें तो बाकायदा जिस शख्स ने ये प्रोसेस करवाया उसकी तस्वीर भी मौजूद है और ये वही चेला है जो माइक पकड़कर हक खतीब के साथ मौजूद था जब हम उसके अड्डे पर उसके सामने उसे झुठला रहे थे और ये चीख चीख कर चिल्लाकर बदज़बानी कर रहा था। ये तस्वीर भी पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की इस दस्तावेज में मौजूद। अगेन तहसील कोटली सतिया जमीला खातून दुख्तर खुदादाद रजिस्ट्री नंबर 5/1 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 50 लाख 5 कनाल 3 मरला ट्रांसफर होती है, मुंतकिल होती है हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली के नाम पर 16/1/2021 को। विरासती जायदाद ये तमाम तर जायदादें पिछले 2 से 3 वर्ष की मैंने आपकी खिदमत में पेश की, शायद भी कोई जायदाद होगी 2015 या 16 की है। जनाब तहसील सियालकोट मोहम्मद नजीर वल्द मोहम्मद शफी रजिस्ट्री नंबर 6099 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1183 बिल इवज 49 लाख रुपए 29/6/2022 को ट्रांसफर होती है हक खतीब नाम के फ्रॉडी के नाम पर हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली। आगे उनका पता और शनाख्ती कार्ड नंबर तहरीर है 2 कनाल 1 मरला। तहसील कोटली सतिया मोहम्मद जियाद वल्द मोहम्मद एजाज रजिस्ट्री नंबर 73 बही नंबर 1 जिल्द नंबर 1 बिल इवज 34 लाख रुपए 1/10/2022 को ट्रांसफर होती है हक खतीब हुसैन वल्द सूबेदार मुसंजफ अली के नाम पर 2 कनाल 18 मरले। अगेन तहसील कोटली सतिया सोबिया जबीन दुख्तर मोहम्मद इश्तियाक रजिस्ट्री नंबर 48/1 बिल इवज 20 लाख रुपए 10/9/2021 को 3 मरला 169 फुट ट्रांसफर होती है हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली के नाम पर। यह भी फ्रॉड किया जा रहा है कि जनाब लोगों की तरफ से तोहफातन दी गई ये जमीन। आप सोचिए कितना बदबख्त इंसान हो सकता है, कितना गिर सकता है कोई इंसान कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामी इस्तेमाल करे अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए। मेरा सबूत मौजूद है, इसलिए कि जब हम इसके अड्डे पर गए हमने इसका सामना किया, हमने इससे सवाल किया कि हुजूर आपकी अरबों रुपए की जायदादों की दस्तावेजात हमारे पास मौजूद है, तो एक टाउट पहले से खड़ा कर रखा था इस बदबख्त ने और उस टाउट ने कहा जी वो जमीन मैंने
गिफ्ट किया है हजरत को। मैंने कहा कितनी जमीन है? उसने कहा मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूं, जिसके जवाब में हक खतीब नाम के खबीस का कहना था कि ये जमीन मैंने खत्म नबूवत सेंटर के लिए ली है। हुजूर ये 11 अरब रुपए की जायदाद है, 66 जायदादों के दस्तावेजात मौजूद है, खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर ये जमीनें खरीदी गई हैं। ये हक खतीब के जाती अपने नाम पर ये जमीनों के रिकॉर्ड मौजूद है। ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए जिसमें ये बदबख्त अपनी जायदाद तक को छुपाने के लिए खत्म नबूवत के मकसद और खत्म नबूवत के सेंटर का नाम इस्तेमाल कर रहा है। मैं तुझे प्रॉपर्टी बताता हूं, बताया मेरा बाप भी मुसंजफ अली सरकार का बादशाह का भी था, मैंने जो जमीन लिया खत्म नबूवत सेंटर के लिए दिया, मैंने जमीन दिया कितनी इधर चाहिए दिया ये बताया। हम सब के लिए ये फिक्र का मकाम है कि हम दुनिया भर में हुर्मत रसूल की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, हम दुनिया भर में तहफ्फुज़ खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम करना चाहते हैं। और हमने ये मकसद एक ऐसे फ्रॉड के हाथ में थमा दिया है, हमने सिपा सालानी का तमगा एक ऐसे शख्स के सीने पर सजा दिया है कि जिसके अंदर महज बुग़्ज़ भरा हुआ है, जिसके अंदर महज फ्रॉड है, मक्कारी है, अय्यारी है और जालसाजी है, और जो अपनी जायदादों तक छुपाने के लिए खत्म नबूवत की आड़ लेता है। कहता है जी मैंने जायदादें खत्म नबूवत सेंटर के लिए लिए, अपने नाम पर क्यों ली? और ये पिछले 4-5 वर्ष की जायदादों के रिकॉर्ड है। कहां पे आपने खत्म नबूवत सेंटर बनाने के काम का आगाज किया? खुदा के वास्ते जागिए, अल्लाह का वास्ता है उलमा और मशाइख, अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये फितना आपके अकायद को, आपके नजरियात को खा जाएगा और फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। मेरा काम है आवाज बुलंद करते रहना। अब देखना यह है कि उलमा और मशाइख कितनी जल्दी इस फितने पर काबू पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मुसलमानाने पाकिस्तान, हुजूर मुसलमानाने पाकिस्तान क्या किरदार अदा करते हैं इस फितने के खात्मे के लिए। क्या इसे मजीद इजाजत दी जाती रहेगी कि ये खत्म नबूवत की आड़ में छुपता रहे, खत्म नबूवत की बात कर करके इस मकसद को, इस कॉज को नुकसान पहुंचाए, अपने हुलिये की वजह से, अपने फ्रॉड की वजह से, अपनी वजह खता की वजह से? आप इन जायदादों को तो एक जानिब रखिए, ये जो जर्क बर्क लिबास जेब तन करते हैं वो कितने लाखों का है, इस पर भी इंशाअल्लाह अजीज हम एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो बदबख्त की दावा करता है कि मैं किसी से कुछ नहीं लेता, बताए इस मुल्क के लोगों को, बताए इस मुल्क के मुसलमानों को, बताए इस मुल्क की अदालतों और इदारों को कि ये जायदादें उसने कहां से ली हैं। भाई वाला प्रोपेगेंडा तो फ्लॉप हो गया। बाप की विरासत में से कोई चीज साबित नहीं हो सकती, इसलिए कि पिछले 3-4 बरस की जायदादें मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसमें से कोई भी तोहफा तन नहीं है, बिल इवज रकम तहरीर है कि इतनी रकम के इवज ये प्रॉपर्टी बेची गई है। और एक लम्हे के लिए फर्ज भी कर लिया जाए, ये तमाम प्रॉपर्टीज लोगों ने दी हैं, तो दावा करता है मैं लोगों से कुछ नहीं। एक फकीर का, एक दरवेश का, एक वली का क्या काम है अरबों रुपए की जायदादों से? किस चक्कर में पाकिस्तान के तकरीबन हर जिले में, हर तहसील के अंदर ये जायदादें मौजूद हैं। अगली जायदाद की दस्तावेज तहसील जंड से करम खान वल्द फतेह खान, रजिस्ट्री नंबर 103, बही नंबर 1, जल्द नंबर 30, बिल इवज 15 लाख रुपए 1/3/2022 को 15 कनाल ट्रांसफर होती है हक खतीब हुसैन वल्द सूबेदार मुसंजफ अली के नाम पर। अब यहां से फ्रॉड का आगाज होता है। पहली दस्तावेज हमने आपको दिखाई वो 3,77,55,000 रुपए में महज 5 कनाल थी, लेकिन यहां 15 लाख रुपए में 15 कनाल। और ये अगेन राउंड फिगर इसीलिए दिया गया ताकि रियासत को धोखा दिया जा सके। अगली दस्तावेज है ज़ियाफतुल्लाह वल्द इनायतुल्लाह फरोख्त करने वाले हैं, तहसील है लालियां, बिल इवज 14 लाख रुपए और ये भी 14 लाख में 11 कनाल ट्रांसफर होती है हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली के नाम पर। फिर है तहसील सादकाबाद। सोचिए पंजाब भर में फैली हुई इस जालसाज फ्रॉडिये की जायदादों की दस्तावेज आप देख रहे हैं। खालिद जावेद वल्द फकीर हुसैन ने ये फरोख्त की, बिल इवज 12 लाख रुपए 8/4/2016 में हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को 16 कनाल जमीन 12 लाख रुपए में। अगली दस्तावेज है तहसील तलागंग से मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद असलम, बिल इवज 11 लाख रुपए 11 कनाल जमीन हक खतीब हुसैन को फरोख्त की गई। तहसील सियालकोट, रजिस्ट्री नंबर 2998, जिल्द नंबर 2912, बिल इवज 15,15,000 रुपए 4/5/2023 को 1 कनाल 4 मरला ट्रांसफर की गई हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को। तहसील कोटली सतियां, बशीर अहमद वल्द खान जमान, जिल्द नंबर 1, बही नंबर 1, बिल इवज 20 लाख रुपए 1 कनाल ट्रांसफर की गई हक खतीब हुसैन वल्द मुसंजफ अली को। तहसील कोटली सतियां, वाजिद महमूद वल्द अमीर अफजल, रजिस्ट्री नंबर बही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 10 लाख रुपए 25/3/2017 1 कनाल 18 मरले ट्रांसफर की गई हक खतीब नाम के फ्रॉडिये को। तहसील कोटली सतियां, मोहम्मद फारूक वल्द अली दाद, बिल इवज 18 लाख रुपए मौरखा 9/12/2015 ट्रांसफर की गई हक खतीब नाम के जालसाज को 4 कनाल 3 मरला। रुकैया बीबी दुख्तर अब्दुल रहमान, तहसील कोटली सतियां, रजिस्ट्री नंबर 1/11, बही नंबर 1, जिल्द नंबर 1, बिल इवज 12,90,000 रुपए ट्रांसफर की गई हक खतीब हुसैन को 25/5/2023 को। बशीर अहमद वल्द खान जमान, ट्रांसफर की गई 20 लाख रुपए के इवज 1 कनाल 2/3/2017 को हक खतीब के नाम पर। तहसील जंड, अहमद इमरान वल्द अनवर खान, बिल इवज 4 लाख रुपए। यहाँ 4 लाख का हिस्सा भी यहाँ की दर्जनों दस्तावेजात में है। 27/4/2022 को 18 कनाल ट्रांसफर की गई हक खतीब हुसैन, अगेन एक बहुत बड़ा फ्रॉड। तहसील साहिवाल, मोहम्मद नसर अब्बास वल्द मोहम्मद रमजान, बिल इवज 4,50,000 रुपए 5/8/2022 को ट्रांसफर की गई 2 कनाल 10 मरले हक खतीब हुसैन के नाम पर। तहसील तलागंग, मोहम्मद रफीक वल्द गुलाम मुस्तफा 8 कनाल 19 मरले। ये दर्जनों दस्तावेजात हैं, मेरा गला रिंध जाएगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन ये इख्तिताम नहीं है। ये दस्तावेजात इंशाल्लाह हम सरेआम.org के पोर्टल पर भी डालेंगे, अनकरीब आप वहां भी देख सकेंगे। और एक एक करके इसकी DHA की प्रॉपर्टी, इसकी बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज, जहां ये करोड़ों रुपए मालियत की कोठी में रिहाइश पजीर भी है, इस्लामाबाद की इसकी प्रॉपर्टीज, KPK की इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी गाड़ियों की अरबों रुपए की मालियत, इसके जेवरात जो इससे तकरीबन हर महफिल में तोहफतन दिए जाते हैं, वो डॉलर या पाउंड जो ये लूट कर लाता है पाकिस्तान के बाहर से, उनकी मालियत इसके अलावा है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, ये एक
फकीर कहने वाले शख्स की, खुद को अल्लाह का वली कहने वाले की जायदादें हैं। और मेरा ये दावा एक मरतबा फिर पाया इस रूट को पहुंचता है कि ये बदबख्त इंसान अपने मफादात के लिए, अपनी लूट मार के लिए, अपने फ्रॉड के लिए, अपनी नौटंकी के लिए इस्तेमाल कर रहा है खत्म नबूवत के मकसद को। एक बार फिर मैं दिखाना चाहता हूँ, जब हमने इससे सवाल किया कि आपकी जायदादें कहाँ से आई, इसने कहा इस शख्स ने मुझे तोहफा दी। और ज़ाहिर ये एक शख्स की तोहफा दी हुई जायदादें नहीं, खरीदी हुई जायदादों के दस्तावेजी सबूत है। और उस शख्स ने भी ये नहीं बताया कि कितनी जायदादें दी, लेकिन फिर जायदादों को छुपाने के लिए भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इस्तेमाल किया इस बदबख्त ने कि मैं ये जमीन खत्म नबूवत सेंटर के लिए ले रहा हूँ। मैं तुझे प्रॉपर्टी बताता हूं, बताया मेरा बाप भी मुसंजय वाली सरकार बादशाह का भी था, मैंने जो जमीन लिया खत्म नबूवत सेंटर के लिए दिया। मैंने जमीन दिया कितनी दिया तू बताया। कब होश आएगा पाकिस्तान के अवाम को और कब वो इस शख्स का गिरबान पकड़ेंगे कि बदबख्त इंसान, इस फ्रॉड को रोको। और खबरदार अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए आपने खत्म नबूवत का नाम इस्तेमाल किया। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने हिस्से का काम तब तक करते रहेंगे जब तक हम झंझोड़ कर जगह नहीं लेते। उलमा और मशाइख इस मामले पर अब तक खामोश हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में हम वो दस्तावेजी सबूत भी आपके सामने रखेंगे कि ये किस तरह से बाहर से लोगों से पैसे मंगवाता है, डॉलर्स मंगवाता है, कौन से बैंक अकाउंट्स उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस अड्डे को ये आस्ताना कहता है, इस कब्जा माफिया ने उस पर कब्जा कर रखा है, उसका केस भी इस वक्त अदालत में चल रहा है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो दस्तावेजात भी आपके सामने रखेंगे कि किसी भी कब्जे की जगह पर आप कैसे आस्ताना बना सकते हैं, कब्जे की जगह पर बैठकर आप कैसे मजहब का और विलायत का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस शख्स को, इस झूठे को, इस फ्रॉडिये को, इस कज़ाब को इसके घर तक छोड़ कर आएंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी जान हथेली पर रखकर एक मरतबा फिर इसके अड्डे पर जाएंगे और अब की बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक इसका जालसाजी का, फ्रॉड का ये अड्डा बंद नहीं हो जाता। इसलिए कि यहाँ आम लोगों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनतकशों के साथ, मरीजों के साथ, माजूरों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन तमाम लोगों को इस फ्रॉड से बचाने के लिए अपने हिस्से की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।